Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I'm going to discuss the practice of medicine, important key points with you that are very important for your UPSC or state examination or any of the entrance examination, because I have shared this PDF also, but many students have not read it because due to the lackage of time. But I want to tell you that this is the very important, because it is a concise information of the practice of medicine. तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आई एम डेफिनेटली श्योर that you are going to attempt very good questions, and you are going to correct them also. Okay, so please see this video. Of course it's going to be lengthy, but it's very important for you, क्योंकि अगर आप किताबें खंगाल भी रहे हो और आपने कोई एक ऐसी चीज़ मिस कर दी जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे सकती थी, सो दैट्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू like it. Okay, so please see this video from first to last. So let's start the video. So first of all, typhoid cultures. Okay, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि टाइफॉइड फर्स्ट वीक में क्या कराना चाहिए हमको, सेकेंड वीक में क्या कराना चाहिए, थर्ड वीक में क्या कराना चाहिए, फोर्थ वीक में क्या कराना चाहिए. सो यू आर सिंपली गोइंग टू लर्न द बासु, दैट इज द निमोनिक ऑफ दिस. बी फॉर blood culture, that is for the first week. A for the agglutination test, that is a Vidal test, that is for the second week. And S for the stool culture, that is for the third week. And U for the urine culture, that is for the fourth week. Now the next question is the carcinomas of the lung. Okay, तो यहाँ पर एक जो बहुत important चीज़ है, most common type of lung cancer, that is adenocarcinoma. And the second most type of the lung cancer, that is squamous cell carcinoma. So first one is the adenocarcinoma and second one is the squamous cell carcinoma. Okay, next is, what is the most common type of the cancer in the non-smokers, the persons who don't smoke, that is adenocarcinoma, because it is the most common. Okay, then the most common lung cancer in the young patient, that is adenocarcinoma. So you have to remember the one word, that is adenocarcinoma is the most common, and it is the most common in the non-smokers as well as in the young patients or in the females. Okay, and next thing is the spots. So spots are the very much important, because simply asked that scopic spot is for, so it is for the measles, Roth spot for the subacute bacterial endocarditis. Okay, bitter spot is seen in the vitamin A deficiency, and Herald spot in the pityriasis rosacea. Okay, then the ECG examinations for the hyperkalemia is important, because it is asked question that ECG एग्जामिनेशन इन द हाइपरकेलेमिया, अगर किसी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो ECG चेंज क्या आते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो QT इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाती है, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, और टॉल एंड पीक T वेव आपको देखने को मिलेगी. सो देयर इज PR इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, QT इंटरवल शॉर्टनिंग, एंड T इज पीक्ड. ओके, then after hyperkalemia there is a hypocalcemia. So hypocalcemia ECG changes are the QT interval is prolonged. जैसा हमने देखा hyperkalemia में जो QT इंटरवल था वो शॉर्ट हो गया था, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया में QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है. देन देयर इज अ ब्रीदिंग ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग इज सीन इन द डायफ्रामेटिक पाल्सी. ओके, cavernous breathing is in the cavities, tubular breathing in the lung consolidation, amphoric breathing is in the pneumothorax. So these are the frequently asked questions. Okay, then the respiratory failure, type 1 respiratory failure is in the parenchymal disease, ARDS, emphysema, pneumonia. Okay, and type 2 is in the COPD and the flail chest. So you have to remember this. Type 2 respiratory failure is in the COPD and the flail chest.
देन ब्रोंकिक्टेसिस में जब आप देखोगे तो ब्रोंकिक्टेसिस में एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि ब्रोंकिक्टेसिस में कौन सी साइड जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो लेफ्ट लोअर लोब जो है वो ब्रोंकिक्टेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्लबिंग इज सीन इन द ब्रोंकिक्टेसिस। ट्रैम ट्रैक लाइंस आपको देखने को मिलती है, दैट इज चेस्ट एक्सरे। जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे ब्रोंकिक्टेसिस में तो ट्रैम ट्रैक लाइंस आपको देखने को मिलेगी। So the two things you have to read it from here, that is the farmer's lungs. It is caused by the micropolyspora feni and it is associated with the moldy hay. And bagosis caused by the thermoactinomycetes sacchari and it is associated with the sugarcane dust. Okay. Goon's focus suggestive of the healed primary pulmonary TB. Okay. This is you have to read from here. So pulmonary embolism most commonest finding is the dyspnea. Okay, and when you see the chest x-ray, तो chest x-ray में आपको हैम्पटन साइन और वेस्टमार्क साइन देखने को मिलता है। ओके, अगर आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इन्वेस्टिगेशन कराते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा है पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ARDS में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। वाटर हैमर पल्स इज इन एओर्टिक रिगर्जिटेशन, पल्सेस पैराडॉक्सिस इन एस्थमा, pericarditis and cardiac tamponade. Moving on to the heart sound. So heart sounds are very much important कि किस तरीके की heart sound किस चीज़ में देखने को आपको मिलती है। Heart sound soft S1 is for the stenosis. देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर S1 साउंड आपको देखने को मिल रही है तो वो सॉफ्ट हो के लाउड हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए मिट्रल स्टेनोसिस में मिलती है, ठीक है, मिट्रल वॉल्व के जो नरोइंग है उसकी वजह से है, ठीक है। देन अगर स्प्लिट S2 साउंड है तो आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखना है, पल्मोनरी स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 दैट इज सीन इन द लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड एओर्टिक स्टेनोसिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। अगर S3 सुनाई दे रही है तो हाइपरडायनामिक स्टेट होती है, पेरिकार्डाइटिस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इन कारणों से होती है। अगर S4 सुनाई दे रही है तो उसके कारण है हाइपरटेंशन एंड मिट्रल रिगर्जिटेशन। देन वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, तो जब आप देखोगे कि WPW सिंड्रोम है तो उसमें ECG चेंज आपको क्या देखने को मिलेंगे कि जो PR है वो शॉर्ट है और जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो वाइड है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रूमेटिक हार्ट डिजीज़। एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में जब आप देखोगे तो उसमें क्राइटेरिया होता है, एक मेजर क्राइटेरिया कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को डायग्नोसिस करने का मेजर क्राइटेरिया क्या है, एक होता है माइनर क्राइटेरिया। सो मेजर क्राइटेरिया इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथमा मार्जिनेटम, सिडेनम स्कोरिया, कार्डाइटिस एंड माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। सो दीज आर द रूमेटिक हार्ट डिजीज़ मेजर क्राइटेरिया। ओके, इसके साथ आप देखोगे कि एशकॉफ बॉडीज़ किस में मिलती है, तो इट इज़ फाउंड इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। मैकुलम्स पैच जो है वो RHD में मिलता है, ठीक है। मिड डायस्टोलिक मर्मर इज हर्ड इन MVP। MVP इज व्हाट, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, ओके। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर इज हर्ड इन HOCM। HOCM इज द हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी, ओके। सो कार्डियोमायोपैथी जो है उसमें आपको इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा और जो मिड डायस्टोलिक मर्मर है वो आपको मिलेगा MVP में। Then infective endocarditis, so most common cause of subacute is Streptococcus viridans, but acute is Staphylococcus aureus. Osler's node are found in infective endocarditis, painful pea-sized nodules in the pulp of the fingers. Then atherosclerosis, risk factors are low HDL, raised apolipoprotein A, smoking, okay। जिनका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होता है उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। देखो एक तो होता है LDL, एक होता है HDL, तो जिसमें HDL जो है वो कम हो जाए उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन सेंसिटिव मार्कर फॉर MI इज ट्रोपोनिन T। पूछा जाता है CKM भी ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर ट्रोपोनिन T ज़्यादा सेंसिटिव है। सो ट्रोपोनिन T ज़्यादा सेंसिटिव दैन CKMB because it is only found in the heart muscles, okay। CKMB rises at 4-8 hours,
देन कार्डियक टैम्पोनेट, तो अगर अपन चेस्ट एक्सरे करेंगे कार्डियक टैम्पोनेट के लिए तो अपने को ग्लोब्यूलर हार्ट देखने को मिलेगा. देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज व्हाट्स ब्रेक्स ट्रायड. सो ब्रेक्स ट्रायड इज हाइपोटेंशन, साइलेंट हार्ट एंड JVP. Cosmal sign is seen in the constructive pericarditis. Okay, so next is anemia. So anemia का common cause जो है इंडिया में वो है आयरन. तो कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कीड़े होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, हुकवर्म्स. ओके, देन द सीलिक स्प्रू एंड कार्सिनोमा ऑफ कोलोन. आयरन ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसका कॉमनेस्ट जो हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी है वो है प्रेगनेंसी. ओके, हाइपोक्सिया and acidic pH of stomach or ferrous iron salts. Okay, most sensitive and specific test for diagnosis iron deficiency anemia is serum ferritin levels. So हम ये देखते हैं कि अगर फेराटिन लेवल्स जो है वो ज़्यादा है कि कम है, उससे हम पता करते हैं कि कौन सा एनीमिया है. ओके, SLE में अगर हम देखें मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग क्या है तो नॉन एरोसिव आर्थराइटिस देखने को मिलता है. रीनल मैनिफेस्टेशंस में पैपिलरी नेक्रोसिस एंड वायर लूप लेजन्स. ओके, एंड मोस्ट कॉमन डेथ रीनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है SLE में. एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA. देन पॉलीमायोसाइटिस. प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स आर इन्वॉल्व्ड. प्रॉक्सिमल मतलब पहले, ठीक है, डिस्टल मतलब दूर वाली. सो ये हम देखते हैं जो हमारा ट्रंक होता है उससे कि ट्रंक के पास क्या है और ट्रंक से दूर क्या है. ठीक है, सो प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलीमायोसाइटिस. pharyngeal muscles are involved also. Raised CPK. ओके, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस. अगर मसल वीकनेस देखने को मिल रही है तो वो आपको मैस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलती है. प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द पॉलीमायोसाइटिस, लेकिन अगर मसल वीकनेस है तो मैस्थेनिया ग्रेविस. ओके, मैस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स डिस्फेजिया, डिसार्थरिया. ओके, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कशिंग्स अल्सर, डिस्टल ड्यूडेनम. ठीक है, कर्लिंग अल्सर्स क्या होते हैं? कर्लिंग अल्सर्स होते हैं जो बर्न के बाद देखने को मिलते हैं, है ना. और बर्न्स के बाद जो अल्सर्स होते हैं वो होते हैं कर्लिंग अल्सर. ठीक है, अगर हम बात करें कि कशिंग अल्सर, तो कशिंग अल्सर्स जो ड्यूडेनम है उसमें देखने को मिलता है. और अगर हम देखें पैप्टिक अल्सर, तो पैप्टिक अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. ठीक है, टॉक्सिक मेगाकोलोन इज सीन इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड किशर फेयर रिंग्स इन विल्सन डिजीज. ओके, इज meningitis. So most common cause of neonatal meningitis, okay, that is gram negative bacilli group B streptococci. एल्डर्स की बात करें तो निमोनिया. ठीक है, और अगर हम यंग अडल्ट की बात करें तो नाइजीरिया. ओके, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, पुरुलेंट एक्सुडेट क्लाउडी CSF एंड डिक्रीज्ड ग्लूकोज एंड इंक्रीज्ड प्रोटीन. मतलब ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज किस में कम हो रहा है, प्रोटीन किस में बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर ग्लूकोज कम होता है और प्रोटीन बढ़ जाते हैं बैक्टीरियल में. ठीक है, देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस इज एंट्रोवायरस. एर्गल रॉबर्टसन प्यूपल इज सीन इन न्यूरोसिफिलिस. एंड इज इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें होता क्या है, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स तो रहता है लेकिन लाइट रिफ्लेक्स जो है वो गायब हो जाता है. ठीक है, then brain tumor. So most common brain tumor is astrocytoma and most common glial tumor is also astrocytoma. तो अगर कोई पूछे कि ब्रेन ट्यूमर कौन सा कॉमन है तो एस्ट्रोसाइटोमा कॉमन है. ठीक है, देन कॉप्लिक स्पॉट सीन्स इन द मीजल्स, ये मैं बता चुकी हूँ. ओके, रेडियो सेंसिटिव लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक पैल्सी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसीज पैन एसिनर एम्फाइजिमा में मिलता है.
ठीक है. So stopping this video here, otherwise this video is going to be too much lengthy, and we are going to continue the further things in the next video. So till then, if you like the video, like it, and if you want this PDF, you can ask me on the Telegram so that I can provide you there. So that's all for the today's video. I hope you like it. If you like it, and subscribe to our channel. Thanks for watching. No homeopathy.